Hello and welcome to the chapter. That is chapter number 8 of our standard 10th CBSE NCERT syllabus of your mathematics. That is, as I just said, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In this chapter, we'll introduce what exactly is this word trigonometry. And one more thing I'll tell you about this word trigonometry. Ki is chapter mein whatever concepts we study, it will be helpful. Those concepts will be needed in order to understand one more chapter, that is applications of trigonometry. Okay, so in our syllabus there is one more chapter, there is application of trigonometry. वहां पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो कंसेप्ट सीखेंगे वहां पर वील अप्लाई. ओके फाइन. नेक्स्ट, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, देयर इज वन मोर चैप्टर इन योर सिलेबस दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. उसमें भी यहाँ के सीखे हुए कंसेप्ट वी विल अप्लाई. एंड इवन इन चैप्टर ट्रायंगल्स, at some places, not everywhere, at some places might use the concept which we have learned in the chapter Introduction to Trigonometry. Okay, so यहाँ पर से जो trigonometry सीखने वाले हैं, it is not just useful for this chapter, it is useful for all the coming 3 chapters. यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, दे आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर 1 चैप्टर, दे आर एक्चुअली यूजफुल फॉर 4 चैप्टर्स. तो अगर ये नहीं आते तो आगे के 4 चैप्टर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे. स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट? तो इसके लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो, अच्छे से सुनो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आगे के 3 चैप्टर भी हमारे पॉकेट में आ जाए. ओके फाइन. सो बेस्ड ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Just a cautious note again, this video should not be uploaded to YouTube without any prior permission taken from me, that is Salman Petiwala. I'm Salman sir. Okay, let's start the chapter trigonometry. Let's try and understand what exactly is this trigonometry. So if you see in the textbook, the trigonometry का use कहीं बार आता है, ठीक है? वो textbook में mention किया गया. For example, it's very useful at places. I'll tell you where. For example, let's say I am a person, let's say standing here, और मेरे सामने let's say एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है? बहुत बड़ी बिल्डिंग है. let's say this is the building. just imagine this is Eiffel Tower, ठीक है? just imagine बहुत बड़ी कोई चीज़ है Eiffel Tower, and I want to measure this Eiffel Tower. तो क्या कर सकते हैं हम? ऐसा लेकर स्केल इस आईफिल टावर को मेजर कर सकते हैं, पर बहुत मुश्किल काम है, राइट? ऐसा कोई खड़ी चीज, लंबी चीज को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इन दीज केसेस इट्स वेरी डिफिकल्ट लेट्स टू मेजर दिस हाइट. लेट्स से दिस हाइट ऑफ दिस आईफिल टावर, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज एन आईफिल टावर एंड द हाइट ऑफ आईफिल टावर इज, दिस इज माय आईफिल टावर, is some h. okay, so I'll just say the height of my Eiffel Tower is h and I want to measure this height. okay, मुझे ये height measure करनी है. let me just show it to you. so let's say, yeah, like this. I'll say this height is h and I want to measure this height as I just said. okay, तो अगर मुझे इस आईफिल टावर की हाइट h मेजर करनी है तो वी कैन डू इट वेरी इजीली यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. कैसा बताता हूँ. let's imagine that you are standing at some distance from the Eiffel Tower, right? okay, तो ये h डायरेक्टली हम नहीं निकालेंगे, हम इनडायरेक्टली निकालेंगे. we'll use trigonometry to calculate value of h. okay, we'll use trigonometry to calculate what? to calculate h. ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं मेजर करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मेजर करेंगे, क्योंकि इसे डायरेक्ट मेजर करना बहुत मुश्किल है, राइट? अगर मैं आईफिल टावर का लेंथ मेजर करूं तो बड़ा मुश्किल है. हम क्या करेंगे? we will let's say measure this distance. what is the distance of me from the Eiffel Tower, right? ये तो बड़ा आसान है मेजर करना, जमीन पे कोई भी डिस्टेंस बड़ा आसान है. so let's say for example this is 20 meter. okay, I'm standing from the Eiffel Tower at a distance of 20 meter, just an example. now let's say I am looking at the Eiffel Tower. ऐसा हम एंगल से देख रहे हैं, राइट? जस्ट इमेजिन आई एम नॉट हियर, आई एम स्लाइटली डाउन. ठीक है सर, आसान करने के लिए चीजें आई एम एक्सप्लेनिंग यू. लेट्स से मैं यहाँ से देख रहा हूँ आईफिल टावर को, राइट? ओके, सो दिस एंगल ऑफ व्यूइंग with which I am viewing my Eiffel Tower is 30 degree. okay, so we can use this 30 degree. हम इस 30 डिग्री का यूज करेंगे. we'll use this 20 मीटर और हम h कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, so we'll calculate h using 2 things. ये 30 डिग्री का यूज करेंगे and we'll use this 20 मीटर. okay, so that means what? हमें ऐसा आईफिल टावर को डायरेक्टली मेजर करने की जरूरत नहीं है, h से ही कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे so that we can use 20 मीटर and 30 डिग्री to calculate h. इसे कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. so this is one use of trigonometry.
Okay. Now, very cautious note to start with about trigonometry. You should know that trigonometry can be only applied to triangles. Okay, remember this. ये एग्जाम्पल समझा ना मैं क्या कर रहा हूँ. आईफिल टावर की हाइट निकाला यूजिंग द ग्राउंड वाला 20 मीटर और एंगल 30 डिग्री, मैंने एच निकाल लिया. ठीक है, अब अच्छा मैं सिखाता हूँ. सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए you should remember trigonometry should only be applied in case when we have a right angled triangle. What do you mean by right angled triangle? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वन, ये जो एंगल आप देख सकते हो इसका एक एंगल होगा ऐसा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री. लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी एंड सी. तो इस ट्राइंगल में जब 90 डिग्री होगा तो ही मैं I can apply trigonometry. Okay, remember that trigonometry can be applied when we have a right angle triangle. अगर कोई अलग तरह का triangle है, let's say for example I have some random triangle, anything equilateral or isosceles, something like that. पर let's say this angle is 70 degree, this angle is 50 and this angle is 60. तो अब you cannot apply trigonometry. ठीक है, trigonometry के लिए one angle should be right angle, right? For example, in this case, angle B is equal to 90 degree in this triangle, right? इस triangle की बात हो रही है ये वाले. So therefore, triangle ABC में मैं trigonometry लगा सकता हूँ. Why? Because angle B is 90. पर यहाँ पर we cannot apply directly trigonometry. Okay, तो ये चीज़ याद रख लो, चैप्टर पढ़ने से पहले ही याद रख लो कि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत मस्त अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते. ओके फाइन, सो दैट्स अ बेसिक कंडीशन टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री. नाउ लेट मी टीच यू व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिग्नोमेट्री. अगले 5 मिनट प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. अगर अगले 5 मिनट समझे ना तो सब कुछ समझ में आएगा. अगले 5 मिनट नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझेगा. लेट मी बी वेरी क्लियर. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट with the main concept of trigonometry. Let me teach you trigonometry in my style. और मैं एक बहुत आसान से easy method, एक छोटा टेक्निक सिखाऊंगा. What do you mean by trigonometry? एकदम easy concept से सिखा दूंगा. Okay, let's see, this is a triangle. Okay, or this is a right angle triangle. Let's say this is angle A, that this is angle B and this is angle C, right? Okay, so फिलहाल के लिए मैं सिर्फ angle B को लिखता हूँ. लेट्स से दिस B is 90 डिग्री, राइट? अब B 90 डिग्री है तो आई कैन अप्लाई व्हाट? आई कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री. एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, मैं A का एंगल को थीटा ले रहा हूँ. ठीक है, लेट्स व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सेइंग एंगल A इज इक्वल टू थीटा. नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट. अब ध्यान से सुनो. इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस ना, जो 90 के सामने वाला होगा, 90 के सामने कौन है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने देखो तो कौन सा साइड दिख रहा है? देखो ये वाला साइड दिख रहा है, AC दिख रहा है, राइट? आई वाज जस्ट शोइंग दैट बाय एन एरो. सो ये जो AC है, एक कौन सा ट्राइंगल है? ये 90 के सामने वाला साइड है, राइट? ओके, सो जो 90 के सामने वाला साइड होता है ना, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वर्ड. सो व्हाट्स एन हाइपोटेन्यूज? बेसिक्स है ना, तो एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए जाता हूं. हाइपोटेन्यूज का मतलब दैट इज साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री. ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है? साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री. इन दिस केस हाइपोटेन्यूज विल बी AC, राइट? दिस साइड विल बी AC. ओके फाइन, इतना क्लियर है. हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सेकेंड चीज समझो. ये थीटा है ना, इसके सामने कौन है? तो आप बोलोगे सर इसके सामने BC है, राइट? सो दिस इज, कैन आई से, सामने मतलब ऑपोजिट, राइट? सो व्हाट इज थीटा या व्हाट इज दिस? ऑपोजिट. तो मैं कहूंगा ऑपोजिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो किसके ऑपोजिट है? थीटा के ऑपोजिट है, राइट? ऑपोजिट. एंड व्हाट इज ऑपोजिट इन दिस केस? ऑपोजिट टू थीटा BC, राइट? तो दो चीज हो गई. ये ट्रायंगल में 3 साइड्स है, 1 2 एंड 3. एक तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दूसरा हो गया ऑपोजिट. क्यों ऑपोजिट है वो? क्योंकि थीटा के सामने, जो थीटा के सामने होता है ना,
आई कैन से दैट इज ऑपोजिट टू थीटा, तो वो ऑपोजिट कहलाया जाता है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अब ऑपोजिट तो हो गया, द थर्ड वाला है ना, उसे कहते हैं एडजेसेंट। क्या कहा जाता है उसे? एडजेसेंट। तो थर्ड वाला एडजेसेंट है, तो यहां पर adjacent, what will be the adjacent in this case? AB is the adjacent, ठीक है। थीटा के सामने वाला हो गया ऑपोजिट, ओके, ये हो गया adjacent। अच्छा, adjacent का मतलब बाजू वाला, ठीक है। जो ऑपोजिट नहीं होता, हाइपोटेन्यूस नहीं होता, वो adjacent होता है, राइट? ओके, आई होप दैट इज क्लियर इनफ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई कैन से चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 0 to 10 ईयर्स के बीच में जो होता है उन्हें हम चाइल्ड रफली कहते हैं। 10 to 50 के बीच ईयर्स में होते हैं उन्हें हम यंग कहते हैं, ठीक है। अज्यूम कर लो, चलो 50 बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स अज्यूम 40 तक या 45 तक यंग लोग होते हैं, एंड 45 से लेकर के लेट्स से 100 ईयर्स तक उनको ओल्ड लोग कहा जाता है, राइट? आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो उसी तरह से एक हो गया हाइपोटेन्यूस, एक हो गया ऑपोजिट, और जो लास्ट वाला बचा वो होएगा एडजेसेंट, ओके। तो ये लास्ट जो बच गया वो हो जाएगा एडजेसेंट, ओके फाइन। जरूरी नहीं कि हमेशा ये ए बी सी डी ए डी में यही सब एडजेसेंट या ऑपोजिट हो, बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, लेट मी मेक वन ट्रायंगल, लेट मी मेक वन गुड ट्रायंगल जस्ट टू शो व्हाट इज व्हाट। Okay, let's consider this triangle. I'll say this triangle is P, Q and R. And ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है। ये एंगल थीटा, और नेचुरली ये एंगल विल बी 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो शॉर्ट में लिखता हूँ, दिस इज हाइपोटेन्यूस, वेरी क्लियर। थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, राइट? और बचा हुआ जो होगा वो एडजेसेंट, ठीक है। प्रीटी क्लियर, नो प्रॉब्लम। आई रिपीट अगेन, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, ओके। चाहिए तो हिंदी में लिखता हूं, थीटा के सामने वाला को ऑपोजिट कहा जाता है, ठीक है, ओके। और बचे हुए एक एडजेसेंट। सो इन दिस केस जस्ट टू राइट, पी आर विल बी हाइपोटेन्यूस, पी क्यू विल बी ऑपोजिट, राइट? थीटा के सामने है ना ऑपोजिट, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई एक दो बार बता रहा हूं। क्यू आर विल बी, दैट इज द वन एट द बॉटम, दिस विल बी द एडजेसेंट, ओके फाइन। सो बेस्ड ऑन वॉट एवर योर थीटा इज, योर ये सब ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है, ठीक है फाइन। सो नाउ एक बार ये तीन चीज समझ में आ गई। कौन सी तीन चीज? आई रिपीट अगेन, हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है। सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट, सबसे पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ओके। देयर आर हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वन इज साइन थीटा, okay, one is cos theta, next is tan theta, उसके आगे आता है cosec theta, ये वर्ड्स याद रखो। फिफ्थ वाला है sec theta। एक काम करता हूं, मैं नीचे का इरेज कर देता हूं, ये तो सिर्फ थीटा के सामने वाला मैंने समझाने के लिए बोला था, थोड़ा नीचे का, ओके, इसको बाजू में यहाँ कर लेते हैं। एंड छठा वाला है cot theta, ये पहले वर्ड्स याद रख लो। आई रिपीट अगेन, लास्ट वाला है cot, 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 ओके, cot थीटा। ये वर्ड्स याद रख लो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिना इन वर्ड्स के कुछ भी हम नहीं कर सकते इस चैप्टर में, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ओके। अब एक चीज इनके लिए मैं आपको सिखाता हूं, लेट्स स्टार्ट। तो एक कोड है, आप बोलोगे सर क्या कोड है, तो मैं बताता हूं, एकदम सीक्रेट कोड है। एक कोड है, ये वर्ड याद रखो, ओशा। What do you mean by this word? ओशा, छोटा, SHOT। ये टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, ये समझाने के लिए टीचर्स लोग की ट्रिक होती है। ये वर्ड देखा, ओशा छोटा, ठीक है। ओशा छोटा में एक काम करो, बहुत ध्यान से एक काम करने का। ओशा छोटा ये वर्ड समझ में आ गया ना? यहां पर S को, फिर 2 लेटर्स छोड़ के C को, फिर 2 लेटर्स छोड़ के T को, इनको हाईलाइट कर लेने का। क्या क्या करने का? आई रिपीट अगेन, ओशा छोटा लिखने के बाद एस से स्टार्ट करने का, फिर 2 लेटर्स छोड़ के सी को, फिर 2 लेटर्स छोड़ के टी को, ठीक है। बहुत आसान काम है। अब ये एस का मतलब है साइन, ये एस का मतलब है साइन। अब इस साइन के बगल में क्या है? तो आप बोलोगे सर एक ओ है, एक एच है, बराबर। ओशा छोटा एक बार लिख लिया, साइन, एस सी टी।
ये this stands for sine, this stands for cos, right? Sine cos, और next वाला t stands for naturally tan. तो ये एरो बनाया, तो साइन का मतलब होता है O अपॉन H. साइन इज इक्वल टू O अपॉन H. नाउ O अपॉन H का मतलब क्या? O का मतलब ऑपोजिट एंड H का मतलब हाइपोटेन्यूस. समझ में आया? O का मतलब ऑपोजिट, H का मतलब हाइपोटेन्यूस. सिमिलरली ये cos के अराउंड भी दो एरोज ऐसे बनाओ. ये cos है ना हमारा, AH मतलब A का मतलब एडजेसेंट और नीचे है हाइपोटेन्यूस. क्लियर? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट लास्ट tan. तो tan क्या होगा? O अपॉन A. O अपॉन A मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. राइट? वेरी सिंपल, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम अप टिल हियर. ये तीन अगर याद हो गए तो आगे का तो एकदम बच्चों का खेल है. ओके फाइन. तो ये याद हो गया, आई होप. ओशा छोटा से. साइन क्या होता है? O अपॉन H, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंड tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में देख के लिख लेते हैं. तो इस ट्रायंगल में इफ यू जस्ट सी व्हाट इज ऑपोजिट, तो आप लोग बोलोगे सर ऑपोजिट तो BC है, तो ये क्या होगा? दिस विल बी BC अपॉन एडजेसेंट इज, आई एम सॉरी, हाइपोटेन्यूस. राइट? हाइपोटेन्यूस इज AC. नीचे लिखा भी था, hypotenuse is AC. This will be equal to adjacent. Adjacent is AB. So this is AB upon hypotenuse, that is AC. Lastly, this is opposite, that is BC upon adjacent. Adjacent क्या है? AB. Right? तो बड़ा आसान सा चीज है. So यहां से हमने 6 में से 3 पढ़ लिया. ओशा छोटा से तो बड़ा आसान काम हो गया, साइन कॉस टैन. ओके फाइन. नाउ एक चीज याद रखो, 1 2 3 4 में 1 इज 4 का उल्टा. अब ये वर्ड याद रखो, 1 है ना 4 का उल्टा. फिर नेक्स्ट 3 है ना 5 का उल्टा है. ओके सॉरी, 2 5 का उल्टा है, और 3 जो है वो 6 का उल्टा है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज कॉल्ड, माय रफ लैंग्वेज में मैं इसे ना उल्टा पुल्टा कहता हूं. उल्टा पुल्टा. तुम लोग बोलोगे सर क्या उल्टा पुल्टा? ये टेक्निक है, ये सब फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है. 1 4 का उल्टा है. अच्छा, 1 4 का उल्टा है मतलब इनवर्स है. राइट? फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली 2 5 का इनवर्स है और 3 6 का इनवर्स है. तो अगर ये टेक्निक अगर दिमाग में रखो तो इसके बेसिस पे अब कुछ फॉर्मूलाज लिखना चाहता हूँ. फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर फिर बाद में 4 5 6 बाद में आता हूँ. ठीक है? 1 क्या था? साइन थीटा था. राइट? 4 क्या था? कोसेक थीटा. तो साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा. ठीक है? कोसेक थीटा. फॉर्मूला नंबर 8, 2 इज 1 अपॉन 5. तो 2 कॉस है, ये सेक है, 5 सेक है. सो कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा. मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं. मतलब अगर यहां पर है 2 तो यहां पर होगा ऐसा, लाइक दिस. राइट? उल्टा ऐसे, एक दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे. ओके, दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन यू विद वन मोर एग्जांपल. ओके, एंड नेक्स्ट इज ये जो कॉट है वो टैन का उल्टा है. तो जो या टैन कॉट का उल्टा है, बात तो एक ही है. टैन इज 1 अपॉन कॉट थीटा. ठीक है? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. साइन कॉस की जोड़ी है, कॉस सेक की जोड़ी है, और टैन कॉट की जोड़ी है. राइट? सिंपल, बहुत ईजी है. ओके, सो देयरफॉर अगर मुझे कोसेक लिखना है तो कोसेक साइन का उल्टा है. राइट? तो साइन था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट. राइट? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट सेक की बात करूं तो सेक कोसेक का उल्टा है. कोसेक था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट. राइट? ओके. कॉट क्या होगा? कॉट है हमारा टैन का उल्टा, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. राइट? लिखना है तो लिख सकते हैं. व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस इज AC. ओके, ऑपोजिट इज, व्हाट इज ऑपोजिट? BC. Hypotenuse is AC, adjacent is AB. Adjacent is AB. Opposite is what? BC. Right? तो ये रहे मेरे 9 फॉर्मूलाज. टू स्टार्ट विद 9 फॉर्मूलाज. पहले तो ओशा छोटा लिख दिया और उल्टा पुल्टा से बाकी तीनों लिख दिए. ठीक है? और एक्चुअली ये भी सब लिख दिए.
फाइन. सो दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू स्टार्ट इन दिस चैप्टर. अगर ये आता है तो पूरा चैप्टर आता है. अगर इसमें से एक भी चीज नहीं आती है तो आगे चैप्टर कोई करके फायदा ही नहीं. ठीक है, रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो दिस थिंग. ओके, यू शुड रिमेंबर दैट these 6 important trigonometric identities. These are called trigonometric identities. Okay. Okay, I'm writing it down. Trigonometric identities. और सिमिलरली ये साइन थीटा को ऐसा भी बोलने को बोल सकते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, ऑफ आई कैन से एंगल थीटा. ओके, ऐसा भी कहा जाता है. फुल फॉर्म साइन का SCNE है, कोसाइन का COSINE है, टैन का फुल फॉर्म टेंजेंट है. जस्ट लेट मी राइट डाउन देयर फुल फॉर्म. कोसेक का कोसीकेंट है फुल फॉर्म. सेक का फुल फॉर्म सीकेंट होता है, पर जनरली उसे कोई सीकेंट नहीं बोलता, सब सेक सेक बोलते हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस पोर्शन. सिमिलरली लेट मी राइट डाउन कॉट का फुल फॉर्म. तो कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट. क्या फुल फॉर्म होता है? कोटेंजेंट. सब याद रखने के लिए समझ लो, ये जनरली इसे कोई ऐसा नाम से बुलाता नहीं है, सब शॉर्टकट नाम से ही बुलाते हैं. ओके ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ these formulas, then we can go forward to the problem. So now moving forward to the next formula, we have already studied how many formulas till now? 9 formulas we have already studied. Okay, so let me add the 10th formula to the list. Now ये सब formulas बड़े important है. 10th formula एक और पढ़ाता हूँ, that is if you see tan theta, ये formula याद कर लो. tan theta is sin theta upon cos theta. What is this? Tan theta is sin theta upon cos theta. उसी तरह से if you see cot theta, then cot theta will be cosec theta upon sec theta. ये भी याद रख लो फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वैसे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो 9 फॉर्मूलाज तो इंपॉर्टेंट थे ही थे, फिर ये 10 और 11 भी बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनो. एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेट्स से अगर मुझे एक ट्रायंगल ऐसा दिया जाए, ठीक है, एंड लेट्स से इफ आई एम गिवन दैट दिस एंगल इज थीटा, एंड लेट्स से आई एम गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 3/5. क्या दिया जाता है? साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 3/5. तो इस केस में क्या करने का? तो लेट्स से इफ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, यू नो थीटा के सामने वाला ये होता है ऑपोजिट, राइट, एंड ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये होगा हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स, और बचा हुआ ये होगा एडजेसेंट, राइट. तो ऑलरेडी ओशा छोटा से हमें पता है, व्हाट इज साइन थीटा. साइन थीटा जो बीच वाला S होता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. इट इज ऑपोजिट, दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, राइट. तो जब कभी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन ना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन, चाहे वो कॉस, चाहे वो कॉटैन, कुछ भी दिया हो, सो व्हेन आई मे से, ये कौन सा केस है? व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हैं, इज गिवन, देन क्या करने का उस केस में? ध्यान से सुनना. अब AB, so from here you can clearly see AB upon AC is nothing but, इसको उल्टा ही, इसको ही लिख रहा हूँ, AB upon AC will be 3/5, right. so जो numbers है ना, उनको साइड से इक्वेट कर दो बाय अ कांस्टेंट. ओके, सो आई कैन से पुट अ कांस्टेंट एंड इक्वेट. ओके, इक्वेट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहां पर एक कांस्टेंट K लगा दो, यहां पर भी एक कांस्टेंट K लगा दो. अगर कांस्टेंट K लगाए बिना इक्वेट नहीं कर सकते. अब एक बार कांस्टेंट K लगा दिया तो इक्वेट कर दो. इक्वेट कर दो मतलब डायरेक्टली इक्वल टू लिख दो. AB विल बी इक्वल टू 3K एंड AC विल बी इक्वल टू 5K. रिमेंबर दिस. ओके, फाइन. ओके, तो ये कब यूज होता है? व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन. ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन और हमसे पूछा जाता है फाइंड द अदर रेशियोज. फाइंड द अदर रेशियोज, ठीक है. तो अगर एक दे करके बाकी सब ढूंढने के लिए बोला जाया जाए तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना. क्या करना? पुट अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कांस्टेंट के, देन इक्वेट द साइड्स, और उसके बाद कैसा आगे बढ़ना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है. सो फ्रॉम हियर 11 फॉर्मूलाज नाउ आर क्लियर, एंड एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देखा. नाउ लेट अस डू वन थिंग, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. कम ऑन, नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन टू सम प्रॉब्लम्स. 11 फॉर्मूले पड़े हैं, उनको अब
आई में से अप्लाई करने की बारी आ गई into problems. So let's solve the first problem. Come on. So ये एक्सरसाइज कितनी है? If I'm not wrong, this is 8.1. उसी तरह से इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है? चलो पहले देखते हैं कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. 8.4 तक है, राइट? So if I'm not wrong, there are 4 exercises in this. No problem. 8.4 तक हम करेंगे. Okay. Let's start with the first problem of 8.1. Let me come down a little bit. राइट ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है. साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. मैंने एकदम शॉर्ट में पढ़ा है, ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में पढ़ा है. सो इट्स टाइम टू गो ऑन ओके टू द फर्स्ट कंसेप्ट. और यू शुड ऑल्सो रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम, राइट? अगर ये तो फॉर्मूला लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, पर पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है, बिफोर यू गो ऑन टू एनी कंसेप्ट. ये 9th में पढ़ा होगा Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, you should know that it is applied to any triangle, any right angle triangle, right? अगर right angle है तो 90 के सामने वाला hypotenuse होता है, right? So अगर let's say this is AB, A, B and C, तो hypotenuse will be AC. So remember, if this is hypotenuse, अगर कोई भी theta है, let's say theta है, तो opposite ये हो गया और adjacent ये हो गया. So remember, hypotenuse theorem, Pythagoras theorem states that hypotenuse का square will be equal to side 1 square plus side 2 square. Now this side 1 and side 2 can be anything. For example, in this case hypotenuse is 90 के सामने वाला hypotenuse होता है. AC square will be equal to what is this? AB. This can be treated as मैं side, किसी को भी side 1 और किसी को भी side 2 लिख सकते हैं यहाँ पर. So this is your side number, let's say 1, and this is your side number 2. So this is side 1 side 2 का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस बचा हुआ कौन सा है? BC. सो BC स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ये पता होना ही चाहिए, ठीक है. अभी ये तो ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा. देयर इज नथिंग न्यू इन पाइथागोरस थ्योरम व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन. ओके फाइन. सो ऑन दैट नोट लेट्स डू वन थिंग. लेट्स पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व. ठीक है, अभी याद आ गया मेरे दिमाग में तो मैंने पढ़ा दिया. ओके कम ऑन. पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी पता होगा. Let's start with the first concept, first problem किधर है भाई? हाँ इधर रहा. So 8.1, let's make a start. Question number 1. Determine. क्या क्या निकालना है? Let's have a look. Okay. 8.1. Problem number 1. Let's just push it a little bit. थोड़ा बड़ा problem हो सकता है. 8.1 है, ठीक है. I'll just erase that part. Okay, this is question number 1. चलो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC. तो कोई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम एट द साइड. कहीं पर भी बना सकता हूँ. लेट्स ड्रॉ इट एट दिस कॉर्नर, ठीक है. ABC राइट एंगल एट B. तो ये जो A, B और C है वो राइट एंगल कहाँ है? मतलब राइट एंगल कहाँ बनता है? 90 डिग्री B पे बनता है, ठीक है. तो राइट एंगल एट B. That means what I have been given? I have been given from here angle B is equal to 90 degree. Okay, very clear. AB is 24 centimeter. So this is AB. AB is 24 centimeter. तो पहले given data लिखता हूँ मैं. 24 centimeter. BC is 7 centimeter. So how much is BC? This guy is 7 centimeter. Okay. Determine sin of angle. देखो क्या चीज निकालनी है पहले? Sin A cos A. What do you mean by sin A cos A? मतलब sin A. I need to consider this angle. तो साइन ए मतलब माई टीटा इज दिस. ओके, जो एंगल है ना, ये मेरा एंगल ए ये वाला है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद साइन ए. तो साइन ए क्या होगा? टेल मी. ओशा छोटा, ओशा छोटा. तो पहले एस ले लो. तो एस के आजू बाजू क्या दिख रहा है? ओ और एच, राइट. तो साइन ए क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, राइट. बराबर शॉर्ट में लिखता हूं, अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, सो सिर्फ ऑपोजिट लास्ट टाइम लिख रहा था, अब प्रिसाइजली मैं लिखूंगा ऑपोजिट ऑफ एंगल ए. तो ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, एंगल के सामने कौन है? तो ऐसा सीधी लाइन देखो तो आप बोलोगे सर BC, राइट. सो दिस विल बी BC. और हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा. तो हाइपोटेन्यूज इज AC, राइट. सो आई नो AC. सो दिस इज साइन ए. तो मुझे बताओ BC पता है क्या? हाँ, BC तो पता है 7 है, पर AC पता है क्या? नहीं, AC नहीं पता. कोई बात नहीं, AC निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो यहां लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से
90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस जो होता है उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूस है हमारा ए सी, राइट. तो ए सी स्क्वायर will be equal to AB square. AB square is 24 square and AC square is 7 square. So this is 576 plus 49. So this is 625. Add करोगे तो 625. So this is AC square. AC square. So AC will be nothing but square हटाने के लिए root लेना पड़ेगा, right? Root of 625. So root of 625 will be 25 centimeter. Okay. ओके. AC विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो बड़ा क्लियर है. AC कितना है? AC इज 25. ओके फाइन. सो व्हाट इज साइन A? साइन A विल बी BC अपॉन AC. और यहाँ मेहनत करके हमने AC निकाल लिया, राइट. ये तो पता होना चाहिए ना. अगर दोनों रूट लगाने स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाता हूँ तो इस साइड रूट लग जाता है, राइट. स्क्वायर हटाने के लिए वी अप्लाई रूट. ओके. सो दिस इज साइन A BC अपॉन AC, दैट इज साइन 7 अपॉन 25. ओके. Similarly, after sin A, we need to go for cos A. तो जरा cos A देखो. तो cos क्या होता है? So if you see cos is adjacent upon hypotenuse. तो I just write down in short form, adjacent of angle. कौन सा angle? Angle A upon hypotenuse. Okay. Please try and understand. So what will be adjacent? ये opposite है, right? ये BC is opposite. ये hypotenuse. तो बच गया कौन? बच गया ये. सो दिस गाय विल बी, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, ये क्या है? एडजेसेंट ऑफ एंगल, आई एम सॉरी, एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, राइट. ये एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, राइट. ये क्या है? ये ऑपोजिट ऑफ एंगल ए. ठीक है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ओके. सो एडजेसेंट ऑफ एंगल ए विल बी ए बी, राइट, अपॉन, राइट. ध्यान से सुनो, ये ए के ऑपोजिट ये है तो एडजेसेंट ये है. हाइपोटेन्यूस फिक्स रहने वाला है. हाइपोटेन्यूस तो हमेशा 90 डिग्री होगा. ओके. 90 डिग्री से सामने वाला होगा. तो हाइपोटेन्यूस क्या चीज है? हाइपोटेन्यूस इज AC. सो AB अपॉन AC. सो AB इज हाउ मच? AB इज 24 अपॉन AC. AC इज हाउ मच? AC इज 25, राइट. सो ये cos A भी मिल गया हमें यहाँ से. cos A इज 24 upon 25, right? Okay. With this I've completed. Okay. Now let's go on to the second part. Come on. अब interesting है. अब खेल एकदम different हो जाता है. Now sin C निकालना है. तो sin C will be opposite of sin का फॉर्मूला क्या है? sin का फॉर्मूला तो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है. sin क्या होता है? Opposite upon hypotenuse, but this will be opposite of angle C upon hypotenuse. तो आप बोलोगे सर ये एंगल C है मेरा, लेट मी राइट इट बाय सम अदर कलर पेन. तो ये एंगल C है, तो इसके ऑपोजिट कौन है? तो आप बोलोगे सर ये है ऑपोजिट ऑफ एंगल C, राइट. और ये तो अगर ये ऑपोजिट ऑफ एंगल C है तो ये हो जाएगा AB, राइट. AB इज ऑपोजिट ऑफ एंगल C, राइट. बड़े क्लियरली दिख रहा है. AB अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट विल बी AC. So this will be 24 upon 25, right? So this is sin C का definition. Lastly, going for the last one, that is cos C. Cos C will be, cos क्या होता है? यहाँ से पता है हमें, cos is adjacent upon hypotenuse. So this is adjacent of angle C upon hypotenuse. So adjacent of angle C मतलब अगर ये opposite है तो बचा हुआ ये हो जाएगा adjacent of C. So adjacent of C is nothing but BC upon hypotenuse, that is AC. So how much is BC? 7 upon 25. तो देखो ध्यान से सुनो, एंगल A का जो ऑपोजिट है वो C का एडजेसेंट है, और C का जो ऑपोजिट है वो A का एडजेसेंट है. ठीक है. जो वो हो सकता है. ठीक है. ये इसके सामने वाला ये इसका ऑपोजिट है पर इसका एडजेसेंट है, ये इसका ऑपोजिट है पर इसका एडजेसेंट है. ठीक है. वेरी क्लियर. सो अगर ये प्रॉब्लम समझा तो आगे इसके एप्लीकेशन भी समझ में आएंगे. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स टू स्टार्ट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद. मेक अ नोट ऑफ इट.